So we already discussed about a monohybrid, dihybrid and trihybrid cross. Okay. Now we are talking about some crosses, some different crosses as a test cross, outcross, backcross and reciprocal cross. हम इनकी बात करने जा रहे हैं. Okay. किसकी बात करने जा रहा हूँ? Test cross, outcross, backcross and reciprocal cross. So one by one we are going to discuss. सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? Test cross. What is test cross समझेंगे. Test cross की definition समझे हम. What I told. Test cross हुआ when we are making a cross. When we are making a cross of F1 hybrid with its recessive parents. When we are making a cross of F1 hybrid with its recessive parents, this is called test cross. देखेंगे हमने क्या कहा. Suppose A रहे आपके one character, आपके बेटा कैपिटल टी, स्मॉल टी, टॉल एंड डॉर्फ parents way, or this is F1 generation, capital T small t यहाँ है. So when we are making a cross of F1 hybrid with its recessive parents, this is test cross. When we are making a cross of F1 hybrid with its recessive parents, this is test cross. Due to the result of test cross, what will form? Capital T small t, capital T small t, small t small t and small t small t. You can check now. ठीक, what is the phenotypic genotypic ratio? यह देखो आपके 2 tall and 2 dwarf. So what is the phenotypic ratio? 1:1. What is genotypic ratio? 2 heterozygous tall and 2 homozygous dwarf. So that is also 1:1. So in cases of test cross, the phenotypic genotypic ratio is 1:1 in monohybrid test cross. Getting energy clear? Once again समझेंगे what is test cross. When we are making a cross of F1 hybrid with its recessive parents, this is test cross. Due to the result of test cross, the ratio will be क्या होगा? ratio 1:1. The phenotypic ratio 1:1 and same as genotypic ratio also 1:1. इसको ध्यान रखेंगे. क्लियर और नॉट जी. चलिए अगली बात करता हूं मैं. नेक्स्ट टेस्ट की बात कर लेते हैं जरा. अगली बात करें. सुने, नेक्स्ट टेस्ट की बात हो रही है अपने बेटा कौन सी? आउट क्रॉस. नेक्स्ट टेस्ट की बात हो रही है आउट क्रॉस. आउट क्रॉस को समझिए आप. व्हाट इज आउट क्रॉस? नेक्स्ट टेस्ट कॉल्ड आउट. आउट क्रॉस हुआ व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड. आउट क्रॉस. ठीक, हमने क्या कहा आउट क्रॉस के लिए? समझे आप. नेक्स्ट क्रॉस कौन हो गया? नेक्स्ट क्रॉस इज आउट क्रॉस. आउट क्रॉस में क्या लेंगे हम? व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद इट्स डोमिनेंट पेरेंट्स. When we are making a cross of F1 hybrid with its dominant parents, this is outcross. And due to the result of outcross, which types of offspring will be formed? You can check. Capital T, capital T, capital T, capital T, and capital T small t and capital T small t. What is genotypic ratio? देखिए 2 homozygous tall and 2 homozygous मतलब heterozygous tall. So what is the genotypic ratio? 1:1. And what is phenotypic ratio? Check करेंगे. All tall. There is no phenotypic ratio in outcross. They all are tall. So in cases of outcross, once again, just listen clear, बड़ा carefully. When we are making a cross of F1 hybrid with its dominant parents, this is outcross. And due to the result of outcross, what is the genotypic ratio? 1:1. And there is no phenotypic ratio. Getting energy. नेक्स्ट बात समझेंगे तो आपको समझ आया टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस दोनों का रेशियो क्या है? 1:1. ठीक है. एक बात समझिए कि टेस्ट क्रॉस और बैक जो आउट क्रॉस रहे बेटा, इनमें से जो टेस्ट क्रॉस रहा है, टेस्ट क्रॉस यूजफुल फॉर नोइंग द जीनोटाइप ऑफ अ पेरेंट्स. टेस्ट क्रॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग द जीनोटाइप ऑफ अ पेरेंट्स. हाउ? जस्ट सी, ये रहा आपका टेस्ट क्रॉस, ए आउट क्रॉस, उससे पहले वाला था टेस्ट क्रॉस. चेक करेंगे कि why only test cross is useful for knowing the genotype of a parents, why not out cross. देखिए अगर मैं ले लूं कि ये रहा F1 हाइब्रिड. F1 हाइब्रिड एक आपके पास आया कैपिटल T स्मॉल t एंड दूसरा भी एक और टॉल है, बट वी डोंट नो कि होमोजाइगस था कि हेटेरोजाइगस है. हमारे पास आया कि वी हैव ओनली टॉल प्लांट. ठीक है. बाय मेकिंग देयर टेस्ट क्रॉस, which types of offspring you will get here? See, due to the result of this, you will get, यहाँ देखो
you will get capital T, small t and small t, small t. Means tall and dwarf. Both types of offspring will be there. Why? Due to the result of this cross, you will get only capital T, small t, and only tall offspring will be there. Only tall. So you will come to know कि if only tall are there means ये जो parents given parents हैं, that is homozygous dominant. That is homozygous. While in case of this, when two different types are coming, you will come to know that this is heterozygous. Getting or not जी, इसको ध्यान रखेंगे. Another case अगर मैं outcross ले लूँ कि why outcross is not helpful for finding the genotype of a given parents, check it. अगर ये outcross होता, इसी में बात कर लें, अगर ये outcross होता तो suppose there capital T small t one parents and capital T another parents. इसका क्रॉस करवाया, outcross means homozygous dominant with homozygous. In both case you will get only, यहाँ देखो, here you will get capital T and capital T small t, and in this case you will get capital T, but in both cases all are tall. Means to say you will not come to know this is heterozygous or homozygous, all are tall. Done or not? So that's what test cross is responsible for knowing the genotype of given parents. Getting? Now another thing is there. Another cross, okay, let me finish it. So another test is there, that is called beta आपका back cross. So we already discussed about test cross, out cross. Now we are talking about back cross. That is back cross. Back cross means whenever we are making a cross of a F1 hybrid, okay, with either of its parents, means homozygous recessive से करवा दिया और चाहे आप homozygous dominant से. Whenever we are making a cross with its either of its parents, whenever we are making a cross of F1, okay, with either of its parents, while it's recessive or while it's dominant, means to say this is back cross. तो अगर हम वैसे बात कर लें तो ये कौन सा क्रॉस है, दिस इज टेस्ट क्रॉस, और ये कौन सा क्रॉस है, दिस इज आउट क्रॉस. मीन्स टू से इन केसेस ऑफ बैक क्रॉस इंक्लूडेड बोथ टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस. सो टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस बोथ आर कमिंग अंडर बैक क्रॉस. व्हाट आई टोल्ड, बैक क्रॉस की डेफिनेशन समझे. व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस of F1 hybrid, when we are making a cross of F1 hybrid with either of its parents, while it's recessive or dominant, this is called back cross. Clear beta? Getting na ji? Can we move? Now listen, another cross. हम दूसरे क्रॉस की बात करते हैं. दूसरा क्रॉस हो गया आपका कौन सा, रेसिप्रोकल क्रॉस. नेक्स्ट क्रॉस है रेसिप्रोकल क्रॉस. समझेंगे इस क्रॉस को, रेसिप्रोकल क्रॉस. व्हाट इज रेसिप्रोकल रहा आपका इस तरह से, ठीक, एक्सचेंज होने वाले रेसिप्रोकल. इसकी डेफिनेशन वाइज अगर हम बात कर ले रेसिप्रोकल में, टू पेरेंट्स आर यूज्ड इन टू एक्सपेरिमेंट इन सच अ वे that in one experiment A will be used as the male parent and B as the female parent and vice versa. नेक्स्ट टाइम क्या होगा आपका, A को यूज करना एज ए फीमेल पेरेंट्स और B को एज ए मेल पेरेंट्स. समझेंगे इसको क्या कहना चाह रहा है. मैंने लिया कि एक मेल और की शादी करवाई फीमेल से, होप सो. एक मेल ले लिया हमने, अगली बार लिया हमने मेल टॉल और फीमेल डॉल. डन. इनके भाई शादी हुई तो बच्चे होना लाजमी है. हेलो, क्लियर. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या लिया हमने, मेल मैरिड विद अ फीमेल, ऑफ कोर्स. इस बार में पहले बार में केस में क्या लिया, इन फर्स्ट केस मेल टॉल था, इस केस में मेल आपने डॉर्फ ले लिया. इन फर्स्ट केस फीमेल वाज डॉर्फ, इससे आपने फीमेल को टॉल लिया और इसके ऑफस्प्रिंग होने दिए. गेटिंग इन टू एक्सपेरिमेंट ऑफ रेसिप्रोकल, यू वी आर altering the sex, altering the character of the sexes, altering the characters of the sexes. In one experiment male was tall, in another experiment female was tall, और इनके F1 जनरेशन देखिए. Done or not जी, this is a reciprocal cross. Clear. इन इस reciprocal cross important things क्या है आप देखो, क्या इनके F1 में कोई चेंज आया. In both cases while you alter their characters of the sexes, still F1 characters remain same. There is no change occur in F1.
व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, बोले फिर फायदा क्या है? ऑफ कोर्स कहाँ फायदा नहीं है इसका, ठीक। ये जो बात हमारी करेक्टर्स, इसको समझेंगे हम ध्यान से, देखें जरा, यदि बात क्लियर हुई, जरा देखें, इसको रब कर दूं मैं, समझेंगे इसी। सो व्हाट आई टोल्ड, करेक्टर्स, देखें, करेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन, करेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स आर नॉट अफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस। हमने करेक्टर इनको अल्टर भी कर दिया थे, द करेक्टर्स, द जीन्स विच प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, सबने क्या कहा, करेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स आर नॉट अफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस, आर नॉट अफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस। हम चाहे अल्टर भी कर दें लेकिन करेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं आया। देन व्हाट द बेनिफिट ऑफ दिस क्रॉस, दिस क्रॉस कहां पर यूज होगा, इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंकेज रिजल्ट्स। तो इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंकेज रिजल्ट्स विल चेंज बाय रेसिप्रोकल क्रॉस, उसमें चेंज हो सकता है। इफ कैरेक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम फीमेल, यू विल कम टू नो कि दीज कैरेक्टर्स फीमेल से आ रहे हैं कि मेल से आ रहे हैं। तो इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में यू विल कम टू नो, अगर वो कैरेक्टर फीमेल से आ रहा था तो हो सकता है यहाँ अपीयर हो रहा था, और नेक्स्ट में अगर फीमेल से हमने जैसे चेंज किया कि वो कैरेक्टर फीमेल से नहीं आ रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं आएगा। क्लियर, मीन्स टू से कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स आर नॉट अफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस। पहली बात क्लियर है, एक क्वेश्चन से डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। एंड द थिंग क्या, इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंकेज रिजल्ट्स, ठीक, कैन चेंज बाय इट, वो चेंज हो सकती हैं। जनरल कैरियोजीन्स जो ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, दे विल नॉट चेंज। उनका आंसर आपको सेम ही मिल रहा है इन बोथ की। प्रैक्टिकली कैसा होता है, आपने देखा कि भाई शर्मा जी जो हैं वो लंबे हैं, उनके बच्चे सारे लंबे हुए, ठीक है। अगले घर में देखा कि उनके वर्मा जी लंबे हैं लेकिन बच्चे छोटे हैं, तो आपके लड़ाई करवा दोगे कि भाई इनके पापा लंबे हैं तो बच्चे लंबे हैं, लेकिन इनके पापा लंबे हैं और बच्चे छोटे हैं तो पड़ोसी का हाथ है। ऐसे बात नहीं करेगा कोई भी। क्लियर, कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी मूव हो सकता है। गेटिंग अनऑर्जिन, क्लियर है ना बात, ठीक है, इसको समझेंगे। तो यानी कैरेक्टर चाहे उनके पापा लंबे हो चाहे उनकी मम्मी लंबी हो, यू कांट से कि वो कैरेक्टर कैसे कैसे मूव हो रहा है। ओनली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में और लिंकेज जो कैरेक्टर्स मूव है, दैट थिंग्स वी कैन कंट्रोल बाय रेसिप्रोकल। गेट इट और नॉट? सो नाउ वी डिस्कस अबाउट एस क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ। क्लियर, इसमें कुछ चीजें समझेंगे जरा यहाँ पर जो हम तीनों बातें की हैं अभी। जैसे मैंने कहा था कि टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। In test cross, out cross and back cross, their phenotypic and genotypic ratio is 1:1. Is it or not? Their phenotypic and genotypic ratio is 1:1. ये मोनोहाइब्रिड के केसेस में है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इसी बात को अगर हम किस में ले जाएं कि अगर हमें निकालना हो कि ना डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक, इन अ ट्राइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, व्हाट द रेशियो विल बी देयर, then with the help of this normal formula 2 की power of n, where n is a number of cross, like that if monohybrid cross 2 की power of 1 तो आंसर आया 2, means आप दो बार इसको लिख देंगे 1:1, 2 times you can write 1:1. if dihybrid test cross का रेशियो पूछता है phenotypic genotypic रेशियो 2 की power of 2 means 4, तो आप क्या करेंगे इसमें, ठीक, 4 times 1:1 रख दिया। if trihybrid test cross ratio means 8, तो ऐसा आप 8 टाइम लिख सकते हैं, 1:1:1:1:1:1:1:1. Getting energy, तो this is test cross, back cross and out cross. The ratio you can get like this. Getting or not? चलिए नेक्स्ट थिंग्स बात करते हैं। चलिए दूसरी बात हो रही है हमारी, यानी टेस्ट के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं मेंडल्स लॉ। जो आप बात करते हैं मेंडल्स लॉ की, मेंडल्स फर्स्ट लॉ मींस लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक, मेंडल सेकंड, वही बात करते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनकी बात करने जा रहे हैं। मेंडल्स फर्स्ट लॉ मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक, मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, like that Mendel's third law, that is called law of independent assortment, law of independent assortment.